ओके, यस, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज। ठीक है, ये है ना इधर ना, ये वाली स्क्रीन आप शेयर कर देते हैं। ठीक है, मैं ये वाली शेयर कर देता हूँ, आप उसको कर दें। Assalamu alaikum everyone and welcome to the third day of 3-day hands-on workshop on applied ML 360 degree integrative solutions in computational sciences, engineering, climate change and genomics, organized by Dr. Muhammad Shehzad from Science Department NUST, Dr. Zakir Khan from Air University Karachi and Dr. Hayat Ali from SNS Department NUST. Let's begin with a recitation of Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Let's talk about some brief overview of day 3 activities, followed by the talk of our guest speaker, certificate distribution ceremony, and some hands-on session. Now, I would like to invite our guest speaker, Dr. Zamir Hussain, Associate Professor, School of Interdisciplinary Engineering and Sciences, NUST. He holds a PhD in Applied Statistics from Mahauddin Zikria University, Multan. His research focuses on statistical modeling of climate extremes, predictive modeling in health informatics, and data-driven approaches addressing societal challenges. Thank you. इधर आ जाए, कंट्रोल संभाल लें। ओके जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। First of all, the test of audibility. Am I audible to online participants? Yes sir, voice is clear. And visible too? Yes sir, audio video clear. Thank you. Okay ji, first of all, thank you so much for inviting me to this talk. I'm always excited to talk to people who are eager to learn about machine learning especially, but primarily regarding data analytics. So we will talk about the application side of machine learning, its general understanding, and okay, so some IT issues. So we are trying to resolve as quickly as possible. Okay. So this talk will be a 30-minute talk. I'll try to make it interactive. If you have any query or question during the session, you may ask. Okay, go to next slide. Next. Okay. So this is the introduction. You already told about this introduction. This is my email. If anybody wants to, this is my office number. This is my mobile number. And एक शौक होता है इंसान का. This is my YouTube channel, Zamir Hussain 3451. अगर आपको मक्का और मदीना की ज़ियारत देखनी है, alongside some stuff of related to statistics and data analytics, you can subscribe this channel. Okay, go next. Go to one page. Again, we stuck up with some technical issues. This is not my fault, actually.
एस्केप कर लेना उसको। सर ये फिर हम स्टक हो गए हैं। So this is the test of patience to the online participants too, and face to face. So as for myself too. Click करें ना? Click करें। Click the name. Okay, next slide सिलसिला। Go to next slide. Escape करके data file दिखा दीजिएगा जब जरूरत पड़ेगी। Go to next slide. Okay, जी, these are some hands-on training and workshops related to data analytics. जो बुनियादी तौर पे साइंस का पर्पस ये है to train people regarding data analytics, and 5 days hands-on workshop on data analytics. बुनियादी तौर पे we emphasize on the statistics behind the clicks. If you want to develop a machine learning model, what it itself is required in the dimension structure and assumptions related to the data, so that the data is ready to apply for the machine learning models, etc. like this. How to deal variables. Summarizing all the stuff in just 2 words means what our workshop focus is how to deal variables, because statistics as a subject is all about dealing variables. Either you are dealing univariable information, one variable at one point of time, or dealing bivariate information, 2 variables at one point of time, or dealing multivariable information, multiple variables at one point of time. So we have a 5-day hands-on workshop and then 4 weeks hands-on workshop. This is primarily a course for CSS students. Stats का जो 100 नंबर का पेपर है, जो कैलकुलेटर पे स्टैटिस्टिक्स आजकल भी सिखानी होती है, तो that is the course related to data analytics, 4 weeks. Alongside that, इसमें सिर्फ ये कैलकुलेटर्स पे सिखाने के साथ साथ we teach that course on Python ताकि hands-on training हो जाए और आप एक CSS फोकस नहीं होता, क्योंकि जब आप इंशाल्लाह CSS क्लियर अगर करते हैं तो देन आप पॉलिसी मेकिंग में जब जाएं तो डाटा ड्रिवन सॉल्यूशंस के रेफरेंस से क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो कि हाउ टू डील विद वेरिएबल. Go next. These are the science strengths. We believe that it's an interdisciplinary school with the degree programs as bioinformatics, computational science and engineering, systems engineering, and the computational science of engineering is a combination of actually statistics, mathematics और computer science. और ये हम नहीं कहते, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) ने खुद guidelines दी थी for the very first time when they introduced computational science and engineering degree program, that 3 of the main disciplines, mathematics, computer science, statistics, has to sit together to solve actually the real world problems. Because it's more of a consortium research rather than individual brilliance. People don't believe. So people believe in interdisciplinary groups, and that is what the strengths of the science are. So my talk primarily relates to statistics as a subject, which is usually known nowadays as data analytics, data science, big data, and these buzzwords are nowadays very popular. Okay, next. Okay, the conceptual framework of data analytics is every process in the world almost is generating some information, either in terms of images or in terms of numbers or in terms of signals. These are 3 main areas in which the information has been generated. And as a statistician, I focus on that process which generates numerical information. Of course, आप लोगों ने बात की होगी image analytics के ऊपर या signal analytics के ऊपर, but primarily my talk relates to the analytics related to numerics. Any process which is generating some numerical information. For instance, मेरी CV जो है, that is my numerical, summarized numerical information. Every process is generating some data. So हमने सोचा जी let's talk about some real world scenarios
rather than कि कोई hypothetical whimsical हवा में बातें करें, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. This is the current research we are doing. अच्छा, एक है जी autism. First of all, one of my area of research is mental and developmental disorders, dealing or screening strategies of mental and developmental disorders. Why I chose this area? Because this is the most deprived area. अगर आप Google करें ना, पूरी दुनिया में हेल्थ केयर सबसे डिप्राइव्ड एरिया है, और उस हेल्थ केयर के अंदर मेंटल हेल्थ केयर बहुत डिप्राइव्ड एरिया है, बिकॉज बहुत ज्यादा सोसाइटल स्टिग्मा अटैच है. आपको डिप्रेशन हो तो लोग कहते हैं ड्रामा हो रहा है, especially that is related to females and children. So mental and developmental disorders are the most deprived area, और challenging in the sense ये है कि those are activity based assessments. उनकी असेसमेंट्स ऐसे नहीं होगी कि आप अपना ब्लड टेस्ट करा लें, यूरिन टेस्ट करा लें तो आपका पता चल जाएगा कि आप डिप्रेस्ड हैं. आपके फेस एक्सप्रेशन रिकग्निशन से पता चलेगा, या फिर कुछ एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट्स हैं. आप गुफ्तगू में ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, अटेंटिव हैं कि नहीं है. इस तरह का एक मेंटल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर प्रेवलेंस में पाकिस्तान में या दुनिया में एट 4th 5th पोजीशन, दैट इज ऑटिज्म. ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बुनियादी तौर पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं होते विद द पैसेज ऑफ एज. क्योंकि एक है बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट्स विद रेफरेंस टू एज, एक है मेंटल डेवलपमेंट्स विद रेफरेंस टू एज. और पहली मेंटल डेवलपमेंट क्या होती है? बच्चा रिकग्नाइज करता है वालिद या वालदा को या अपने फैमिली मेंबर्स को या नहीं, या वालदा की आंखों में आंखें डालता है या नहीं, पॉइंट करता है किसी चीज की तरफ जो उसकी रिक्वायरमेंट है आफ्टर 6 to 8 months या नहीं करता. तो इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस अवेलेबल है. अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने एक बुक पब्लिश किया है, क्वांटिटेटिव चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स. ये आपके पास, ओके, दिस इज द क्वांटिटेटिव चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स. ये चेकलिस्ट है बुनियादी तौर पे, और ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करती है. नंबर 1 सोशलाइजिंग, नंबर 2 कम्युनिकेशन, नंबर 3 रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स, एंड नंबर 2 रेपिटेटिव बिहेवियर्स. क्या ऐसा तो नहीं कि बच्चा सोशलाइज नहीं करता? क्या ऐसा तो नहीं कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता? और क्या ऐसा तो नहीं बच्चे के रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर है? एक ही तरह का बिहेवियर है, एक ही तरह का पैटर्न है, और बार 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 वो एक ही चीज को परफॉर्म करते हैं. दोज पीपल या दोज किड्स एक्चुअली 18 to 24 months के दौरान आमतौर पे इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने के बाद, ये आपके पास 10 क्वेश्चंस है, क्यू चैट 10, क्यू क्वांटिटेटिव चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स, CH फॉर चेकलिस्ट. दिस इज द चेकलिस्ट. तो ये पेरेंट्स फिल करेंगे. डज योर चाइल्ड लुक एट यू व्हेन यू कॉल हिज हर नेम? कम्युनिकेशन की बात हो रही है. तो आंसर में A, B, C, D, E, ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, रियरली, नेवर, इस तरह के 10 सवाल पूछे जाएंगे. Go to the data sheet. Data sheet. Okay. So some of these characteristics are qualitative in nature, क्योंकि ये qualities हैं जिनको quantify किया गया है on 5-point Likert scale. So this is kind of a 5-point scale. इसमें कुछ quantitative features भी डालते हैं डाटा में. जो फीचर्स है, एज है, जेंडर है. सर जरा वो ना एक्सेल की शीट खुलाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले तो आ गया था. आप वो स्क्रीन एक्सेल वाली क्यों नहीं शेयर होती? Okay. This is the data file and we will provide you the link. Of course, Kaggle के ऊपर जाके आप खुद भी ये डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो कुछ भी आपने एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग के मुतालिक सीखा है उसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं.
but please try to understand data structure or dimension. I always focus in learning. Machine learning needs a lot of learning related to the data structure or statistics. For instance, these are certain input features. A1 से लेकर A10 तक QChat 10 के responses हैं. Then comes the age in months, then comes the gender, then comes the ethnicity, then comes the jaundice, था बच्चे को या नहीं था at the time of birth, then family member में किसी को jaundice है कि नहीं, and किसने ये fill किया. S variable बड़ा important है. This is your target feature, and this is the labeled target feature labeled by the healthcare professionals. कि जब उन्होंने इन QChat 10 के सवालों को स्कोर किया, then they introduce certain benchmarks के स्कोर अगर इससे ज्यादा है तो वो ऑटिज्म यस है, और अगर इससे कम है किसी बेंचमार्क से तो वो ऑटिज्म नो है. और ये हमेशा अच्छा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जरूर याद रखिएगा हेल्थ केयर के अंदर. There is always a screening procedure, there is always a diagnostic procedures, and then post diagnostic treatments या therapy suggest करते हैं. This is the normal sequence they usually follow. हमेशा सिर्फ मेंटल हेल्थ केयर की बात नहीं कर रहे, टोटल हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं. स्क्रीनिंग या हिस्ट्री होती है और वो हमेशा सेल्फ रिपोर्टिंग होती है. दुनिया के किसी कोने में आप डॉक्टर के सामने बैठ के ये नहीं कि आप जज करेंगे आप मुझे क्या है, यू एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ योर कंडीशन के जी मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरे बाजू में दर्द हो रही है, 3 दिन से दर्द हो रही है, 2 महीने से ये मसला चल रहा है, 5 महीने से ये मसला चल रहा है, 4 दफा पहले दवाई ले चुका हूं. दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री यू आर प्रोवाइडिंग टू. मेंटल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में QChat 10 वो हिस्ट्री कर रहा है. देन कम्स के स्क्रीनिंग में कुछ शक पड़ेगा डॉक्टर को कि अच्छा ये पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. फिर वो आपको मेडिकल या लेबोरेटरी टेस्ट लिख के देता है फॉर डायग्नोस्टिक स्टैंपिंग, कि डायग्नोस्टिक्स हो जाए. देन डायग्नोस्टिक्स यस नो की बुनियाद पे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, आइदर थ्रू मेडिसिन और थ्रू थेरेपीज. इन ऑटिज्म केस इट इज यूजुअली थ्रू थेरेपीज. डाटा एनालिस्ट जो है वो इंटरवीन कर सकते हैं इन द स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स, बिकॉज स्क्रीनिंग यूजुअली प्रोफेशनल्स नहीं कर रहे होते, यूजुअली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. वो आम तौर पे या स्टाफ कर रहा होता है या वो लोग कर रहे होते हैं जो हाउस जॉब कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी जूनियर एक्चुअली. तो स्क्रीनिंग की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको स्क्रीन करते हैं, देन सीनियर डॉक्टर्स की तरफ जाते हैं. तो वहां पे मॉडल एप्लीकेशन का काम चलता है पूरी दुनिया में कि वो जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स हैं उनको एफिशिएंट और इफेक्टिव किया जाए. अब दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल. There are multiple input features Q1 से लेकर Q10 तक and certain demographics like gender, ethnicity, jaundice family members contributing into this class AST being yes no. ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और टारगेट वेरिएबल है या फीचर है, और ये आपके सारे के सारे इनपुट वेरिएबल्स हैं, इनपुट फीचर्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. एकेडेमिया में आम रिवाज क्या चल रहा है आजकल, और बहुत पॉपुलर चल रहा है, और ग्रेड्स भी बहुत अच्छे आते हैं आपके एमएस के अंदर, और पब्लिकेशंस भी आपकी आ जाती है कि आप इसको टारगेट फीचर डिक्लेयर करते हैं, सारे के सारे फीचर्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, और 2-4 मशीन लर्निंग टेक्निक्स का कंपैरिजन कर लेते हैं, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एएनएन, एसवीएम, एटसेट्रा एटसेट्रा, and based on their precision, accuracy, sensitivity, specificity, you declare a model to be the best fit model. और रिसर्च होगी, वाह जी वाह हमने मॉडल बना लिया है, और दुनिया को आप इस मॉडल को फॉलो कर लेना चाहिए. This is a very common modeling approach in academia particularly, but with the emphasis on machine learning, for too many machine learning emphasis, things are settling down. अब क्या हो रहा है कि जो Q1 के जर्नल्स है ना आमतौर पे, they don't believe in this simple modeling only, because certain independent features are
मेकिंग अ डिपेंडेंट फीचर। जैसे भग्गी में 6 के 6 घोड़े क्या सारे के सारे दौड़ रहे हैं, या कुछ ड्रामे कर रहे हैं और कुछ दौड़ रहे हैं? हर वेरिएबल क्या इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है इन द डिपेंडेंट वेरिएबल या नहीं कर रहा? ये वाली फाइल नजर नहीं आ रही। तो दिखाए ना सर, मैं तो नजर आ रहा। जी आप नजर कर आ रहे हैं, वहीं से असल में उसको शो करवाने हैं। वाई नॉट आप वो फाइल शेयर कर दें मेरे साथ ग्रुप में भेज दें तो उनके पास आ जाएगी। ठीक है, आप फाइल शेयर कर दें ग्रुप में मेरे साथ, बल्कि शेयर कर दें। ये प्रेडिक्टिव मॉडलिंग सीखी हुई है ना जी जी जी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोटिस, अगर आप नोटपैड निकाल लें, अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल है तो देन आपको डिसीजन ट्री या लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज द फर्स्ट क्लासिकल एग्जांपल टू बी चेक्ड एज अ मॉडल। क्योंकि आगे ऑप्शंस है ना कि अब आपने लीनियर रिग्रेशन लगानी है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगानी है, डिसीजन ट्री लगाना है, रैंडम फॉरेस्ट लगाना है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की तरफ जाना है, आपने कौन सी टेक्निक और कौन सा मेथड अप्लाई करना है। It all depends on the nature and type of the variables you are dealing with. अगर आपका ये टारगेट फीचर, डिपेंडेंट फीचर अगर क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूअस है, तो आपकी पहली चॉइस होती है लीनियर रिग्रेशन, multiple linear regression, a regression with multiple independent features and a quantitative continuous preferably normal dependent variable। ये पहली आपकी चॉइस होगी। और फिर आपके जो क्वालिटी चेक्स होते हैं वो रूट मीन स्क्वायर एरर और बाइस होते हैं, क्योंकि जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूअस होता है तो फिर क्वालिटी चेक्स गुडनेस ऑफ इट के तौर पे आप बाइस देख सकते हैं कि हाउ मच बाइस द मॉडल इज प्रोड्यूसिंग एंड हाउ मच रूट मीन स्क्वायर एरर अ मॉडल इज प्रोड्यूसिंग। और अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल है, कैटेगोरिकल मीन कैटेगरीज है, तो फिर ये आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन is the classical choice along with decision tree and random forest and SVM like this। अच्छा, दो और फैमिलीज भी हैं एनालिसिस के अंदर। एक फैमिली होती है क्लासिफिकेशन, जिसको क्लस्टर एनालिसिस भी कहते हैं, और एक है प्रिडिक्शन। क्लासिफिकेशन ये है कि अगर मुझे ये ना पता होता दिस डिपेंडेंट वेरिएबल इन एस लेबल्ड अगर मेरे पास ना हो और मुझे इस सारे इनपुट इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे क्लासिफाई करना हो इसको दो क्लस्टर्स या दो ग्रुप्स के अंदर, then this is a problem of classification to be solved using cluster analysis। और आप डिसीजन ट्री एज अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम भी लगा सकते हैं और क्लस्टर एनालिसिस में के मींस क्लस्टर भी लगा सकते हैं फॉर मेकिंग देम टू ग्रुप्स। एंड इफ दिस target feature is available labeled through the healthcare professionals, अब मैं मॉडल को ट्रेन करूंगा। अगर ये रो इनपुट है तो उसका आउटकम नो है, और अगर ये है तो आउटकम यस है। और इस तरह के नंबर ऑफ इंस्टेंसेस के थ्रू आई एम ट्रेनिंग माय मॉडल फॉर प्रिडिक्शन। ये ऑब्जर्व्ड डेटा है, इस ऑब्जर्व्ड डेटा के ऊपर आप अपना मॉडल ट्रेन करते हैं और फिर अनऑब्जर्व्ड डेटा के ऊपर अपना डिपेंडेंट वेरिएबल प्रिडिक्ट करते हैं। एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर प्रिडिक्शन देन आपकी जो टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट हैं, आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, आपकी हैंडलिंग ऑफ वेरिएबल्स डिफरेंट है, आपके रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स का तरीका बड़ा डिफरेंट है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की बुनियादी तौर पे सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले होता है अगर आपने रिपोर्टिंग करनी है, बिकॉज आमतौर पे स्टूडेंट्स का ये बड़ा सवाल होता है कि हमने थीसिस लिखना है, हमने पेपर लिखना है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट।
रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन के अंदर आपका पहला स्टेप होता है कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, कंपैरेटिव एनालिसिस इफ एनी, एंड देन कम्स मॉडलिंग। ये जनरल टिप्स हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं डाटा एनालिसिस पाइपलाइन के अंदर। मेरी स्लाइड के ऊपर स्लाइड, हाँ हाँ करे करे। अब मुझे बताइएगा ओके, ये स्लाइड आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा ना ऑनलाइन। आगे चले, गो नेक्स्ट, गो नेक्स्ट, गो नेक्स्ट। ओके, हमने ना दरिया को कूजे में समेटने की पूरी कोशिश की है। डाटा एनालिसिस में की पाइपलाइन में जब आप चलते हैं तो सबसे पहले आपका आता है डाटा कलेक्शन में सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मेंशन करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको डाटा फाइल दिखा रहा हूं, इज दिस whimsical और hypothetical और इज इट अवेलेबल एट समवेयर लाइक Kaggle? सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो होता है व्हेन यू कॉन्टेक्ट द यूनिट डायरेक्टली। आप यूनिट के पास जाते हैं जिसके पास इंफॉर्मेशन हो, पेरेंट्स के पास आप खुद जा रहे हैं, फॉर्म फिल करवा रहे हैं, then the nature of the data will be primary, otherwise secondary. And please note that there is no inferiority or superiority in the research that I am dealing with the primary information or I am dealing with the secondary information. It all depends on the problem, nature of the problem. मैंने क्लाइमेट वेरिएबल के ऊपर काम करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कौन कौन से इदारे क्लाइमेट वेरिएबल्स का डाटा कलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास वो डाटा है, फेडरल फ्लड कमीशन के पास वो डाटा है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के पास वो डाटा है। तो मुझे पता होना चाहिए, रादर देन मेरे पास तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि मैं अपना सेटअप बना के रेनफॉल का डाटा कलेक्ट करना शुरू कर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेज, देन जब आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं देन कम्स द डाटा प्रेजेंटेशन, और यहीं से कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हो जाता है। You have to present the data either in terms of graphs or in terms of tables. जैसे आप हिस्टोग्राम बनाते हैं to check normality, बॉक्स प्लॉट बनाते हैं to check normality, बाईवेरिएट के केस में आप स्कैटर प्लॉट बनाते हैं to check linearity. These are few examples. You are presenting the data. जैसे आप अपनी सीवी में समराइज प्रेजेंटेशन देते हैं कि मेरा एजुकेशनल स्टेटस के अंदर मैट्रिक में इतनी परसेंटेज है, एफएससी में ये परसेंटेज है, यूजी में मेरा ये सीजीपीए है वगैरह वगैरह। सो यू प्रेजेंट द डाटा। देन कम्स डाटा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्राइब करना होता है बिकॉज प्रेजेंटेशन इटसेल्फ इज नॉट इनफ। आप इंटरव्यू में, जॉब इंटरव्यू के लिए जाके बैठते हैं तो ये नहीं कि आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, दैट्स इनफ। असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस मीन टेल अस अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है? आपके एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में उनका इंटरेस्ट हो सकता है, अचीवमेंट्स के ऊपर, आपके स्किल सेट के ऊपर, आपकी कंप्यूटिंग के ऊपर, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर, आपकी हॉबीज के ऊपर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनको चाहिए। डाटा के मोटे मोटे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लोकेशन, डिस्पर्शन, शेप। लोकेशन होता है समराइजिंग डाटा इनटू वन वैल्यू। जैसे क्लास का सीआर होता है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट होता है, किस लिए? टू रिप्रेजेंट द कंट्री। जमात में एक इमाम खड़ा होता है टू रिप्रेजेंट ऑल द मेंबर्स। सो आपको डाटा की एक वैल्यू चाहिए होती है, आइदर इन टर्म्स ऑफ मीन, मीडियन और मॉड। आप डाटा की एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू एज अ रिप्रेजेंटेटिव लेके आते हैं सो दैट all the values has a tendency towards that center. अब हर वैल्यू वो सेंटर नहीं होती, तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है जो डेविएट करता है बहुत ज्यादा प्राइम मिनिस्टर से और हमेशा कोशिश करता है कि वो डेविएट करे। तो हाउ टू मेजर दैट डेविएशन? उसके लिए आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, जिनमें से पॉपुलर है स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज डिस्पर्शन अराउंड दैट वैल्यू। देन शेप, स्क्यूनेस वर्सेस कर्टोसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज जब मॉडलिंग की बात आती है ना, मॉडलिंग की, तो देयर आर फैमिली ऑफ मॉडल्स अवेलेबल। देयर इज नो वन फिट्स फॉर ऑल मॉडल, कि पूरी दुनिया में कोई एक मॉडल और वो हर डाटा पे फिट हो जाए।
यूनिवेरिएबल इंफॉर्मेशन की मॉडलिंग करनी है तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ जाना होगा। डिस्क्रीट है तो बाइनोमियल है, पॉइसन है, हाइपरज्योमेट्रिक है, कॉन्टिन्यूस है तो नॉर्मल है, एक्सपोनेंशियल है, क्लाइमेट वेरिएबल में एक्सट्रीम वैल्यूज है तो पियर्सन टाइप 3 है। ये हॉस्किंग एंड वॉलिस ने एक बुक लिखी है 1997 के अंदर, रीजनल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस बेस्ड ऑन एल मोमेंट। सो क्लाइमेट वेरिएबल की मॉडलिंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, दीज आर सर्टेन मॉडल्स। और एक सॉफ्टवेयर है इजी फिट के नाम से, लिख लें बेशक, इजी फिट। उसका डाउनलोडेबल वेरिएंट ट्रायल 1 महीने के लिए अवेलेबल होता है, बाकी चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वो 50-60 मॉडल्स बैक वक्त आपके डाटा पे फिट करके दे सकता है इफ यू आर डीलिंग विद वन वेरिएबल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आपने मशीन लर्निंग में सीखा कि यू हैव मल्टीपल इंडिपेंडेंट इनपुट्स विद वन डिपेंडेंट आउटपुट। सारी दुनिया में ये स्ट्रक्चर नहीं होता है। अगर आपने रेनफॉल वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना है तो आपने अमाउंट ऑफ रेनफॉल को लेना है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल इन मिलीमीटर्स एट एनी पर्टिकुलर साइट। अब ये एक वेरिएबल है, अब इस पे क्या करेंगे? यू हैव टू गो विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज अ मॉडल। कम से कम बाईवेरिएट केस होना चाहिए, 2 वेरिएबल्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपने रिग्रेशन या मशीन लर्निंग की तरफ जाना है तो। और उसमें से भी पहला सिंपल लीनियर रिग्रेशन है या लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल की नेचर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल की नेचर को अलहदा से डिस्कस करते हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है कि ये नॉर्मल है या ये कैटेगोरिकल है। नॉर्मल बुनियादी तौर पे एक यूनिवेरिएबल मॉडल है। डाटा की डायमेंशन, डाटा के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हुए, आई रिपीट माय वर्ड वंस अगेन, बहुत पॉपुलर रिसर्च है आजकल एमएस लेवल के ऊपर पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में। वो जरा स्लाइड दिखाए हैं, वो जो ग्राफ्स थे, एक सेकंड देनी, हमने एक और चीज समराइज की है, ग्राफ्स ऑफ वो मशीन लर्निंग मॉडल्स की पॉपुलैरिटी पर। यस यस यस, आधे घंटे में आई ट्राई टू कन्विंस यू that understanding the structure of the data is far more important than making a click of just machine learning models, because discussion सारी वहां से generate होती है। ये ऑनलाइन के साथ भी शेयर है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है जी, आजकल क्यों ये पॉपुलैरिटी हो गई है मशीन लर्निंग की, तो पहले क्यों नहीं थी? पहले क्या लोग सोए हुए थे? इट ऑल डिपेंड्स ऑन एक्स एक्सिस स्केल के ऊपर टाइम है और वाई एक्सिस स्केल के ऊपर रिसोर्सेज है। When I was the student of Masters in Punjab University Institute of Statistics in the year 2000 to 2002, तो पहली दफा पीसी उन्होंने 50 पीसी रखे थे सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी में, और तमाम स्टूडेंट्स को 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा एक्सेस मिलती थी। और डायल अप कनेक्शन पे आपका याहू खुलता जाता था तो पीछे 1 घंटा खत्म हो जाता था, तो कहते थे उठ जाए आप सीट से। तो ये कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का हाल था। बट आप 2010 के बाद देखें कि हाउ द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैव बीन चेंज्ड। आर का कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त, फोर्ट्रान पे काम होता था, मिनीटैब, एसपीएसएस, पॉपुलर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, सब की डेवलपमेंट, अब पाइथन भी आ गई है। 2010 के बाद के इरा में डेवलपमेंट देखें इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटिंग, एंड देन ड्यू टू द इंटरनेट एक्सेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, डाटा भी अब आपको फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है। ट्रेनिंग डाटा सेट्स, वाई एक्सिस पे उसका मैग्नीट्यूड है, एक्स एक्सिस पे उसका टाइम है। यू कैन वेल रिलेट द टू अ पोस्ट 2010 इरा। अब आप ऑनलाइन सोर्सेज पे जाएं, कैगल को आप विजिट करें, पूरी दुनिया है एक मशीन लर्निंग की। यू नेम एनी, मैं जज्बाती होगा, यू नेम एनी ऑफ द फील्ड, कैगल में जाके टाइप करें, मुझे एग्रीकल्चर में काम करना है, मुझे एग्रीकल्चर का डाटा दे दें, मुझे हेल्थ केयर के अंदर काम करना है, मुझे हेल्थ केयर का डाटा दे दें।
मैंने क्लाइमेट वेरिएबल्स के ऊपर काम करना है, मुझे क्लाइमेट वेरिएबल्स का डाटा दे दें। सॉरी, जाहिर है हर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी करंट रिसर्च आके स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहा हो। वो सारे, ये साइंस के लोगों का हौसला है अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो अपने करंट ऑन गोइंग स्टूडेंट्स के जो डाटा सेट्स हैं वो भी शेयर करते हैं। जरा शेयर करें डाटा ऑन आरकैट्स 47। ये अभी रिसेंट प्रोजेक्ट क्लोज नहीं हुआ, अभी ये प्रोजेक्ट आरकैट्स 47 का। जो आप लोग इंटरेस्टेड है ना, अगर अर्निंग में, स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा सवाल होता है जी हम जॉब कहाँ मिलेगी हमें डिग्री का। जॉब की जरूरत ही कोई, स्किल सेट होने चाहिए, पैसा दुनिया में भरा पड़ा। आप NIH USA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट विजिट करें, और उसमें एक वेबसाइट, उसका एक सेक्शन है NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। इफ यू हैव एन इंटरेस्ट ऑफ मेंटल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स रिसर्च, तो आप उसके कॉल फॉर प्रपोजल्स एंड प्रोजेक्ट्स देखें, और डॉलर कितने उसके साथ अटैच्ड हैं उस एक एक्टिविटी के साथ, इफ यू हैव द स्किल सेट, अंडरस्टैंडिंग और स्किल सेट। और वो एक प्रोजेक्ट अगर आपको जिंदगी में मिल जाए इनिशियल स्टेज के ऊपर, तो आपके 5-10 साल की कमाई लग जाए। ऑल इट रिक्वायर्स इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा and your skill sets to handle that complex problem। प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा था। इस तरह की एक PhD की ऑफर भी आई थी एक जगह पे। प्रॉब्लम क्या था, 8th ग्रेड के अंदर दुनिया में ना बड़ा डिफरेंट ट्रेंड है मॉन्टेसरी का। हमारी तरह यूजुअली मॉन्टेसरीज नहीं है कि रूम अच्छा बना दें, AC वगैरह लगा दें, स्क्रीन्स लगा दें तो मॉन्टेसरी स्कूल बन गया। उनका प्रोजेक्ट था PhD का कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ मैकेनिज्म टू सेग्रीगेट द कॉन्फिडेंट एंड शाय स्टूडेंट्स। क्यों? दे वांट टू वर्क ऑन द शाय स्टूडेंट्स के उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ जॉब। हाउ टू सेग्रीगेट? आपको जादू तो है नहीं है कि सुबह आके बस एक लिटमस टेस्ट करेंगे, जिसका ग्रीन निकल आया तो वो कॉन्फिडेंट है, और जिसका येलो निकल आया तो वो। So you have to introduce certain qualitative mechanisms based on the activity assessments। ठीक है, इस तरह का एक प्रोजेक्ट हमें, क्योंकि प्रेवलेंस में ना, प्रेवलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये टॉप 3 है प्रेवलेंस में, दुनिया में और पाकिस्तान में। छोटे से लेकर बड़ी एज तक हर कोई डिप्रेस रहना शुरू हो गया। और डिप्रेशन और एंजाइटी जो है ये क्लिनिकल सिम्टम्स है, क्योंकि जैसे कैंसर पे रिसर्च हो रही है बंदों को मरने से बचाएं, तो जो खुदकुशी करता है वो भी मर ही जाता है, वो कौन सा ड्रामा कर रहा है। दैट इज द क्रॉनिक स्टेज ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो डिप्रेशन एंजाइटी क्लिनिकल स्टेजेस हैं, स्ट्रेस क्लिनिकल स्टेज नहीं है। वो एक अच्छे जोक से भी दूर हो सकती है, वो एक अच्छे विजिट से भी दूर हो सकती है, वो एक अच्छी मूवी से भी दूर हो सकती है। तो आरकैड्स 47 ये एक चेकलिस्ट है जिसमें 47 सवाल है, असेस कि क्या आपको डिप्रेशन या एंजाइटी के डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं कि नहीं है। एंड दिस इज द रियल इंस्टेंसेस। अब आप देखें, दिस अगेन इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। कौन से ग्रेड में बच्चा है? C कॉलम, बिकॉज आरकैड्स 47। अब ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब ये सिर्फ नहीं कि मुझे ये मिल गई है ना तो मैं अब इस पे मशीन लर्निंग लगा के तो अपना थीसिस कर दूंगा। आरकैड्स 47 को पढ़ना पड़ता है। इसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि ये उस एज ब्रैकेट में एप्लीकेबल होगा जो बच्चे 8 से 18 साल तक, उसके अदर देन एज ब्रैकेट में ये आरकैड्स 47 इस्तेमाल नहीं होगा। देयर आर मल्टीपल अदर, डैश है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस स्केल है विद 42 क्वेश्चंस, विद 21 क्वेश्चंस। असल में स्टूडेंट हमेशा जल्दी में होता है और वो ये लिटरेचर रिव्यू नहीं करता जो असल में बेस होती है। ये बड़ी मिसपरसेप्शन है कि अंडरस्टैंडिंग फ्यू क्लिक्स एंड आई एम द मास्टर ऑफ मशीन लर्निंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंफॉर्मेशन। आपको सवाल कर ले आरकैड्स 47 में आपने ये जो ग्रेड है ये ग्रेड क्यों लेके आए?
भाई 8 से 18 साल तक के बच्चों को डील कर रहे हैं तो वो स्कूल में ही पढ़ रहे होंगे ना, और वो कहाँ पे जा रहे होंगे, या वो स्कूल नहीं जा रहे होंगे या जा रहे होंगे। ग्रेड्स हैं, देन 47 क्वेश्चंस हैं, आगे चले, आगे आगे, ठीक है। देन 47 क्वेश्चंस के बाद SAD, GAD, PD, SDC, OCD, MDD, ये एंड डिप्रेशन, ये सब स्केल्स हैं। 47 क्वेश्चंस मिला के भी आपको कुछ बताते हैं कि आपको मसला कौन सा है, और फिर उस पे फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म करके फैक्टराइज कर दिया है कि कुछ सवाल इस फैक्टर से लिंक्ड है, कुछ सवाल इस फैक्टर से लिंक्ड है, कुछ सवाल इस फैक्टर से लिंक्ड है। तो आपको मेन स्केल्स की क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन भी मिलती है और आपको सब स्केल्स की क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन भी मिलती है। आरकेट्स 47 की ये स्ट्रेंथ है। एंड देन कम्स, आगे चलें, जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, टोटल एलिवेशन, ये आपका मेन टारगेट वेरिएबल है, मेन टारगेट वेरिएबल। अब अगर आपने मशीन लर्निंग मॉडल लगाना है तो 47 क्वेश्चंस आर गोइंग इनटू दिस मॉडल एज एन इनपुट फीचर along with certain demographics with this labeled information of normal, clinical and borderline. So this is a categorical variable with 3 categories. So multinomial logistic regression should be the first step to check whether the multinomial logistic regression fits to this model or not. Then comes a decision tree and then the forest and then. तो एक सीक्वेंस होता है हमेशा आपको, हाउ यू अप्रोच टू द एनालिसिस, हाउ यू डील विद द वेरिएबल। ओके, डिप्रेशन एलिवेशन की तरफ जाना है, एंजाइटी एलिवेशन की तरफ जाना है, कैड एलिवेशन की तरफ जाना है, ओसीडी एलिवेशन की तरफ जाना है। हाँ हाँ, अब आप उधर चले जाए, उन्होंने के 10 मिनट में आते, ठीक है। ऐसे मेरे 30 मिनट हो गए, आई हैव टेकन 10 more minutes. Cutting the long story short, ये मेरा वर्जन है, all of you and other instructors may disagree. If you don't know that dimension, structure and the calculation, acquiring mechanism of the data, machine learning techniques की जो skill set है, आप वो अरूज हासिल नहीं कर सकते। You may get a good degree with good grades of MS or maybe PhD or publication in some kind of a Q2, Q3, Q4 journal. But चूंकि machine learning अब दुनिया में इतना पॉपुलर हो गया है और इतनी ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है, that things are settling down. अब ये नहीं चलेगा that all the input features has to be taken for the development of the model with one dependent feature, either categorical or quantitative. आपको फीचर्स इंजीनियरिंग के ऊपर प्रॉपर बुक्स मिलेंगी, कौन से फीचर्स कितना कंट्रीब्यूशन, रोल क्या है उनका डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, कैसे मेजर करेंगे कि व्हाट इज द वेटेड मैकेनिज्म ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। वो बग्घी के सारे घोड़े दौड़ रहे हैं या जो ड्रामे कर रहे हैं, जो ड्रामे कर रहे हैं उनको निकालना है और उन घोड़ों से रिप्लेस करना है जो दौड़ते हो, अगर स्पीड बेहतर करें। वरना जो दौड़ते हैं उन्हीं को मारते रहेंगे तो थोड़े दिन बाद वो भी ड्रामा करना शुरू कर देंगे, तो कहेंगे यार ये तो कर नहीं रहे कुछ, हमें ही मारी जा रहे हैं, हम भी वही करते हैं, कम से कम सबको तो मार पड़े ना। ये जब आप किसी भी इवैल्यूएशन मैकेनिज्म के अंदर ये चीज खत्म कर देते हैं ना, टू सेग्रीगेट बिटवीन दोज हु आर वर्किंग और दोज हु आर नॉट, तो ये गदर शुरू हो जाता है। तो ये तो अल्लाह पाक की जात ने भी है ना, जन्नत की कैटेगरीज ऐसे थोड़ी है, प्यार बहुत करते हैं अल्लाह पाक की जात में, कोई शक नहीं है, लेकिन अब ब्लैंकेट इम्यूनिटी किसी को नहीं है कि जो मर्जी करता रहे बस ठीक है, जन्नत की आला दर्जे फिरदौस में ही जाएगा, फिर नीचे 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 नीचे। Please understand the data structure. Please understand the data structure. This is my message. Floor is open for Q&A session if any. जी,
एंड के ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पांस वेरिएबल बना रहे हैं पर्टिकुलर तीन कैटेगरी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम एन के ऊपर एक कैटेगरी वेरिएबल बना लेते हैं फिर उन 47% के हर सिंगल क्वेश्चन की कोई इंपॉर्टेंस रहती है? Yes. क्या खूबसूरत सवाल, बहुत आला। अगर आप गूगल करेंगे, वी कैन प्रोवाइड यू द लिंक जिसके ऊपर एक एक्सेल शीट पड़ी है कि आप इन सवालों को फिल करें ना, तो वो आपको बता देगा कि आपका स्कोर क्या है और आपका आउटकम क्या है। वो है एक कैलकुलेटर। हाउ मशीन लर्निंग मॉडल इज डिफरेंट। जब मशीन लर्निंग मॉडल में इनपुट फीचर जाएगी तो उसमें स्कोर नहीं जाएगा, स्कोर भी हटा देंगे। बॉर्डर लाइन केसेस में मॉडल को ट्रेन कैसे कराएंगे कि जो 1 से लेकर 47 तक के इंस्टेंसेस अलोंग विद ग्रेड्स हैं, जो प्रोफेशनल ने उसको लेबल किया था वो क्या है। एंड देन देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस लाइक दैट। 50 होंगे, 30 होंगे, 22 होंगे, 19 होंगे एक कैटेगरी के, 50 होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे दूसरी कैटेगरी के, फिर तीसरी कैटेगरी के। You are training the model based on the instances information, giving them the dependent hint too, without any calculator. वो फिर मॉडल ट्रेन हो जाएगा कि अच्छा ये है, जिसको प्रोफाइल टाइप एनालिसिस कहते हैं। अच्छा ये है, इस तरह का मिलता जुलता ये है। इसीलिए 3 हिस्से होते हैं। आप ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर एक्सटर्नल वैलिडेशन भी होती है कि ट्रेनिंग एक तो है डाटा को स्प्लिट कर ले 70-30, 80-20, 60-40 में ट्रेनिंग टेस्टिंग हो गई। मैं बता रहा हूँ ना, मशीन लर्निंग मॉडल इज सेटलिंग डाउन। अब लोग इसको भी नहीं, वो कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन लेके आओ, इंडिपेंडेंट इस तरह के फीचर्स और कलेक्ट करो, फिर डॉक्टर को बोलो उसको लेबल करे, फिर अपने मॉडल को बोलो उनको लेबल करे, और फिर एरर इन लेबलिंग चेक करो। ठीक है, तो थिंग्स आर सेटलिंग डाउन। प्लीज NIMH की वेबसाइट पे जाके ना जरा उनकी कॉल फॉर प्रपोजल्स और डॉलर्स एसोसिएटेड विद देम सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर आपको मजा आएगा कि अच्छा मुझे ग्रेड 17 की जॉब करनी चाहिए या मुझे मशीन लर्निंग में रिसर्च करनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे नहीं है कि बस आज मैं निकला कुछ पी के तो बस एंटरप्रेन्योर बन गया। Understanding the problem, relating to the problem, resources, your skill set, फिर जिन काबू में आता है। देखिए चिल्ला काटना, गोडे जोड़ के बैठना पड़ता है 40 दिन। 40 तो जस्ट एक हिंट है, लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है जिसको आप एड्रेस करने लगे हैं? व्हाई ARCADS 47, फ्रॉम वेयर आई हैव कलेक्टेड द डाटा, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कौन से फीचर्स इनपुट के तौर पे जाएंगे, कौन से नहीं जाने चाहिए। फिर कल्चरल अडॉप्शन की बात आएगी कि मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी के अगर ऊपर इंप्लीमेंट हुआ है, ईरान में कैसा बिहेवियर है, पाकिस्तान में कैसा बिहेवियर है, इंडिया में कैसा बिहेवियर है, एप्लीकेबल टू जस्ट स्पेसिफिक और एप्लीकेबल टू जनरलाइज्ड वर्ल्ड। दुनिया को कुछ सजेस्ट कर सकते हैं या अपने मोहल्ले को कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। Okay, any other question? Online participants, any question or query? ओके, मेरा एड्रेस वाला दिखाएं जी। या तो मैं बहुत अच्छा टीचर हूं कि अब मैंने बहुत कुछ जी जी प्लीज प्लीज। यस देन यू रिक्वायर मोर एंड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। मशीन लर्निंग क्या है बुनियादी तौर पर? अगर आप लीनियर मॉडल पढ़े ना, लीनियर मॉडल एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन है। अगर स्ट्रेट लाइन रिलेशन नहीं है तो हम मशीन लर्निंग को कह देते हैं भाई स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ और लाइन देख लो। ठीक है, अगर वो भी कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व नहीं कर रहा और कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है तो वी कैन गो विद डीप लर्निंग। इवन नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग मॉडल एक टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है। ये टेक्स्ट जरूरी नहीं कि आप स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन ले रहे हो। ये स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन तो सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज में चलती है। आप क्या फॉर इंस्टेंस मेरे गांव मंडी बाउदीन में इसको इंप्लीमेंट कर दे तो अंग्रेजी कौन समझेगा? आप तो कहेंगे अच्छा जी बताओ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ अम्मा जी की मसला है, वो बोलेगी 1 मिनट 2 मिनट 50 सेकंड 30 सेकंड। अब आपने कुछ सारे टेक्स्ट को प्रोसेस करके उसमें से कीवर्ड्स निकाल के स्टेटमेंट्स खुद बनानी है। यूके के अंदर बहुत पॉपुलर रिसर्च है टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड मेकिंग मॉडल्स फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग, क्योंकि दुनिया स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन पे बिलीव नहीं करती। वो कहती है हमारा दिल करे जो मर्जी कहें, हम जो मर्जी हिस्ट्री बोल दें, आप हमें क्यों कंट्रोल करते हैं? आपका काम है ये कि प्रोसेस करके बताएंगे क्या। तो मेकिंग द कीवर्ड्स आउट ऑफ दैट टेक्स्ट एंड देन अगेन ये बहुत बड़ा एरिया ऑफ रिसर्च है।
application of machine learning. Application of machine learning is just not decision tree or random forest or ANN or deep learning. Problem क्या है, nature of the information as an input क्या है, and then things like that. Okay, any other question? और बाकी ये मेरा ईमेल है, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, मेरा ऑफिस आपका ऑफिस है, हम सब पाकिस्तानी और ये सारे रिसोर्सेज आपके अपने हैं, फील एब्सोल्युटली फ्री। मोबाइल नंबर भी है, ऑफिस का नंबर भी है, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। Those who want to have सोशल मीडिया का जिनको शौक है तो वो ज़मीर हुसैन 3451 लिखेंगे। लेकिन ये बुनियादी तौर पे मैंने बनाया था मक्का और मदीना की ज़ियारत के लिए, कि लोग अगर जाएं वहां पे तो उनको पता हो कि ऑथेंटिक जगह कौन सी हैं, कौन सी हाइक करनी चाहिए, वैल्यू ऑफ टाइम एंड मनी। गारे सौर में आप जा रहे हैं या गारे हीरा में जा रहे हैं तो हाइक, बावजू हाइक अगर आपने करनी है ना, सवाब भी मिले आपको कदम कदम पे। तो इस तरह की फिर वीडियोस मैंने बनाई ताकि लोगों को दिलचस्पी पैदा। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्विटेशन एंड टाइम जी, एंड सी यू सम अदर टाइम इंशाल्लाह। Thank you so much. And first of all, welcome Dr. Professor Wasim Haider Sahab. And thank you so much, Dr. Zamir Hussain, for such an insightful and very informative session on data analytics and machine learning. Basically, the examples you have given us will help us a lot of more to understand how we can connect theory with the real world applications. And now I think we have to start for next session, which is most क्या कहते हैं सबसे अच्छा लगने वाला का certificate distribution. And before that, I would like to invite Dr. Wasim Haider for 5 to 7 minute talk about closing remarks for this workshop, and then inshallah certificate distribution. That's just very short because उसके बाद फिर Thank you so much. Thank you so much. You called me again. Assalamu alaikum, everyone. I hope you had a great experience here, learning skills, and might be getting insights into different dimensions, different fields, right? There is a person from finance, economics there, business studies. Mostly you guys are computer scientists or computer engineers. I think this workshop was mainly inclined towards life sciences, right? If I'm not wrong. So mostly the things were coming from life sciences, biology or environment or yeah. So probably I think we'll be open for your suggestions for the next time. Is there any imaging thing also you did? Image processing or imaging? Yeah. But I think it's a good beginner for all of you. Life sciences is obviously very important. जान है तो जहान है, right? और climate change आपको पता है जो भी इस टाइम केपी ऑलरेडी सफर कर चुका है, पंजाब की बारी है, उसके बाद सिंध की बारी आनी है। तो अल्लाह में सबको अपनी हिफाजत में रखे। ईस्ट पंजाब उस साइड पे कश्मीर floods devastating a lot, right? So environment is a big thing to work with. Agriculture, you need to eat if you want to live, obviously. So agriculture and livestock. So there is a lot of things going on in that dimensions, especially after COVID. We realized that jaan hai to jahan hai, right? So anyways, but I think the things are the same, principles are the same, whether you are taking any data from stock exchanges. Gene expression is something like that. The example which we actually followed. So similar trends or similar thing happens in your stock exchanges. Similar thing happens in the distribution of resources all across the world, right? Resources are not distributed normally, है ना? किसी को 10, किसी को 20, किसी को 30, ये रब के फैसले हैं। एंड उसी के अंदर फिर उसका एक हर एक का अपना एक ट्रायल है। ही नोज, एक बुजुर्ग थे और उनके पास कोई शेरनी वगैरह आई तो मुरीद बैठे थे, उन्होंने कहा रब चाहिए तकसीम पसंद करोगे या मुस्तफ़ाई? मुस्तफ़ा तो करीम है, वो तो हर एक को चाहते हैं कि वो जन्नत में जाए। रब सोने का अपना एक निज़ाम है। तो उन्होंने कहा खुदाई तकसीम कर दें। तो खुदाई की किसी को 2, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 30। उन्होंने कहा ये ले जाओ और वापसी पे व्हेन यू कम बैक
तो आपका हिसाब होगा और बताना है फिर ये कैसे खर्च किए हैं। तो जिसने सवाल किया था उसको शायद ज्यादा दे दिए, और जिसने किसी को एक दिया और वो परेशान हुआ कि मुझे एक दिया है इसको दो मिले, फरमाया जाओ खर्च करो, शाम को आओगे तो मुझे हिसाब देना। हिसाब के लिए फिर वो लेके शाम को उनको एक तंदूर पे ले गए। तंदूर वाला वहाँ काम कर रहा था। इट्स लॉट ऑफ हीट नाउ डेज। आजकल आप जाते हैं रोटियां लगवाने भी जाते हैं तो दूर पे साइड पे होके बैठे होते हैं, वो बेचारा उसके ऊपर काम कर रहा होता है। थिंक ऑफ हिम। एनीवेज, तो वो जिसको 100 मिले थे वो तो बेचारा हिसाब देते देते शराबूर हो गया। आखिर में जिसको एक मिला था उन्होंने पूछा क्या किया, उन्हें जी कुल्फी खाई, दैट्स इट, छलांग मारी नीचे, राइट, और वो बच गया। एंड देन पीपल रियलाइज कि यार दिस इज हाउ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, आपको जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं, आपको जो कैपेबिलिटीज दी हुई हैं और आपको जो अपॉर्चुनिटीज दी हुई हैं, तो ऑब्वियसली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू हैव टू think about everybody who is suffering all across the world, right? Especially you the literary people, you the skilled people, and this new era which is coming, or new time frame आपका बहुत tough है, to be honest. We lived, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रहे। अब आपके लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। क्या आप ऑल ऑफ अ सडन हम इतनी सारी चीजें डॉक्टर शहजाद लर्न करेंगे एंड एआई वुड कम एंड सिंपली रिप्लेस अस, take away our jobs? This will happen. So we are all concerned now. But obviously you are concerned because you are a skillful person. You know how to deal with these things. You know Java, you know C++, you know all other programming languages, you know lot of statistics. But the kids जो कि आजकल पढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल अपना ब्रेन इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, आपने उनको आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर करना है, बचाना है उस डिस्ट्रक्शन से जो कि हो सकता है उनके साथ। when if the things they go out of control, there are some movies also out there that tells us the other side of this, that can happen now. But obviously we are responsible for that, so we have to learn, we have to gather around all these things, and we then generate that thing to our new generations. आप स्पेशली आपकी जो जनरेशन है, आप उस ट्रांजिशनल टाइम के ऊपर और उस टाइम फ्रेम के ऊपर आप बैठे हुए हैं, तो probably God has selected you, right? And उसमें obviously it's hell of responsibility for you to learn more. हम भी कर रहे हैं, उम्र के इस हिस्से में 50 साल हो गए, अब 2-4-10 साल बाद रिटायर हो जाने हैं। बट obviously if I look back towards you guys, so there are a lot of challenges, no? So anyways, all the best. Keep your hard work going, right? Try to gather around as much as knowledge and skills as much as possible, and try to give relief to God's other people who don't have these facilities. Thank you so much. All the best. Thank you so much. Wonderful शहजाद, बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी चीजें आपसे हमने सीखने को मिली हैं। कल भी मैं ऑनलाइन बीच बीच में आके देखता रहा हूँ। माशाल्लाह, the way you conducted, excellent. And another thing, माशाल्लाह, very humble और very lovely person. मेरे काफी शागिर्द वगैरह इधर हैं, जॉब से भी हैं, जूनियर्स भी हैं। This is my first time at Science or NUST. And thanks to you for the respect and love you had for your virtual teacher. शहजाद, physically मैंने नहीं पढ़ाया आपको, but बेटा आपका माशाल्लाह, I was so touched. जी, so that's why I'm here, and we keep coming here again and again, and we would love to collaborate in our projects, in do science and things. मिलजुल के हम इन चीजों को ना समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। हमने जब बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टार्ट की थी, यही सिचुएशन थी हमारी। मोस्टली बायोलॉजी की डिग्रियां करके आ रहे थे या कोई कंप्यूटर साइंस करके आ रहा था। वी सैट टुगेदर, वी लर्न द थिंग्स टुगेदर। तो इसी तरह है, राइट? साइंस मिलजुल के एक दूसरे के साथ, स्टैटिस्टिशियन भी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी इंपॉर्टेंट है। टीम बनना है, सुपरस्टार्स नहीं बनना। तो जो डे 1 पे मैंने मैसेज दिया था, मिलजुल के और एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है। कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ, नो जेलेसीज, नो कंपटीशन, कोई बड़ा छोटा नहीं है। सबसे पहले हम नहीं है, वो जो है ना, सबसे पहले जियो ने न्यूज ब्रेक की या फलाने चैनल ने की, या हम पायनियर्स हैं। नो, नोबडी इज पायनियर्स। So we have to all do these things together. Medical doctors, scientists, engineers, computer scientists, right? Inshallah. Thank you so much. All the best. Thank you so much. Online participants जितने भी थे, आप लोग, you stayed with us. I hope you also have enjoyed this journey. Online जो हमारे resource persons हैं, Dr. Zakir साहब, you are also blessing us with your knowledge and skills. Thank you so much, everybody. Jazakallah khair. So thank you so much, sir.
Sir, I would like to invite you to please come on the stage to distribute the certificates to FTF students, and online participants will receive their certificates through post. Abdurrahman Qureshi. Thank you so much for your Fakhar Hussain. Alisha Hassan. Amjad Nawaz. Bibar Khan. Syed Iman Hassan. Aruj Khan. Nuzhat Naz. Haris Zahir. Muhammad Hamad Shahid. Ashish Suhail. Hassan Raza Sayyed. Starting university, right? Naiba Khalid. Muhammad Akif Awais. Abdul Basit. Samia Simab. Muhammad Bilal. Muhammad Qasim.
Maham Batul, It's time for refreshment. Technical comments. नीचे करेंगे Participants का नाम लिख कर भी हुआ certificate everyone received their certificate तो हम ऑनलाइन बता Recording stopping. Recording stop. Stopping.